Good afternoon. So today, okay, have you done the sums at home? Have you completed the sums at home? Yes, sir. Yes means shall I do the sum in here or shall I move ahead with the next sum? Fine, I'll do that. What I think is, let me do this once. Let me show you. Let me share my Excel file with you, and then I'm going to do this. Can you see my Excel file now? Yes. Yes, sir. Okay. So suppose if I want to make, let's say, uh, this comparative statement. So I need to put some columns. You know which columns are there, right? So first column would be, let me draw the columns. So this is the question. Let me draw the columns. So the first column would be my particulars. Just a minute. If you want to do the sum with me, you can also do. The next is note number. Then the column would be the previous year and the next year. So definitely the previous year is what? In here, the previous year is 2019, right? So first comes the previous year and there comes the next year. पहले previous year आएगा और उसके बाद next year. So यहाँ पे अगर आपको देखोगे, so they given the current year first and the next year, I mean previous year afterwards, right? So this is current year, this is previous year. पर हम कैसे लिखेंगे? पहले previous year लिखेंगे and then we are going to write the current year. So note number के बाद आएगा previous year. You can just write previous year. If you want to write a date, you can write a date also. 31/3/19 is the date. And then you write the current year. The current year's date is what? 31/3/2020. The entire figures will change that way, right? और यहाँ तक सब कुछ कॉपी करना है आपको. Clear? This will be your A. This will be your B. Then what you need to do is you need to find the absolute change. Absolute change. That is increase or decrease. I'm just raising the fonts then afterwards. Let me draw the form and then the percentage change. Again, that is again in increase and decrease. Let me do the font size properly. Let me do the formatting. This I will call as C, and C is equal to we know that B minus A, and this I'll call D. D is equal to C upon A into 100, right? So now I'm writing the particulars, all the particulars जो यहाँ पे लिखे हैं वो सब particulars यहाँ पे हम लिख देंगे वापस, right? पूरा sum. The first is what? The first is equity and liabilities. इसके भी fonts जरा बड़े कर लेता हूँ मैं.
थोड़ा अच्छा सा फॉर्मेट बना देते। The first will be your equity and liabilities. मैं इसको बोल करके रख देता हूँ. The next is उसमें भी part 1 होगा, that is shareholders funds. ये हर बार आपको लिखना पड़ेगा, इवन इन एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट. मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप ये लिखोगे नहीं तो इसके भी मार्क्स होते हैं, राइट. मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. और उसके अंदर आएगा ए एंड बी. ए में होगा शेयर कैपिटल और बी है रिजर्व सरप्लस. एंड दैट्स इट. उसके बाद आएगा सेकंड पार्ट है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. और उसमें होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. या फर्स्ट जूम कर देता हूँ. नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड, और वो है करंट लायबिलिटीज. और करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल्स है. दैट्स इट. जैसे फर्स्ट पार्ट है वैसे सेकंड पार्ट है असेट्स. हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे यहाँ पे assets. नाउ assets में जो भी है यहाँ पे नॉन करंट और करंट ही दिया है आपको, राइट. और उसमें दो चीज़ दी है. सो नॉन करंट असेट्स में होगा, उसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है. फर्स्ट सेकंड ही है, थर्ड भी नहीं है. और सेकंड होगा करंट असेट्स, उसमें भी दो पार्ट है, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. और करंट असेट्स में दो पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. Now this, after writing this, you need to write a values, जो भी values दिए आपको, right. So 2020 की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे और 19 की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे. तो पहले 20 की वैल्यूज लिखते थे.
जस्ट मिनट, इसका ये अमाउंट फिगर्स है तो हम अमाउंट के लिए फॉर्मेट लगा देते हैं, राइट। रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। वैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 1,60,000 एंड ट्रेड पेबल्स में 1 लाख। वैसे ही 19 के फिगर्स यहाँ पे लिख देते, 2 लाख, 2 लाख, दिस इज 40,000, सॉरी 40,000 and 60,000, that's it. So 19 figures. Again 20 के figures हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले 60,000, 40,000 और यहाँ पे दो figures है 20,000 और 40,000। वैसा ही यहाँ पे है 3,60,000 और 40,000, यहाँ पे 80,000 एंड 20,000। देख लेते टैली हो रहा है कि नहीं। ये टैलीड है, बराबर है, और ये सेम चीज यहाँ पे भी लागू होगी, ये टैलीड है तो बाजू। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अभी हमको एब्सोल्यूट चेंज फाइंड करना है, राइट। हर एक में इसका टेबल में फाइनल कर देता है इसको। आपको इसी तरह से थोड़ा अच्छे से बनाना है, इवन इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। Now in the share capital, if you look, C is equal to B minus A, so that is this minus this, यानी 3 लाख माइनस 2 लाख, तो आपको मिलेगा 1 लाख। वैसे ही यहाँ पे 2 लाख माइनस 2 लाख यानी 0 हो जाएगा, 1,60,000 माइनस 40 यानी 1,20,000 और 1 लाख माइनस 60 यानी 40। क्लियर हो रहा है ये। सिमिलरली आपको ये रूल यहाँ पे भी लागू पड़ेगा, राइट। ये जो टोटल है उसमें भी ये रूल, सेम रूल लागू पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये। यस सर। ओके, अगर मैं इसका टोटल भी करूँ तो भी टोटल एब्सोल्यूट का बैठ जाएगा। देखो मैं इससे माइनस करूँ तो भी बैठ जाएगा, या फिर इसका टोटल करूँ तो भी बैठ जाएगा, तो परसेंटेज नहीं बैठेगा। मैं बोल देता हूँ वापस, परसेंटेज कभी नहीं बैठेगा। सो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द परसेंटेजेस इन टोटल। टोटल में कभी परसेंटेज फाइंड करने की कोशिश करना भी मत, राइट, वरना दिक्कत में आ जाओगे। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड डी। डी क्या है? डी होगा सी यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय ए, दैट इज 2 लाख, राइट। दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। तो ये अमाउंट हमको लेना पड़ेगा परसेंटेज में, राइट। वापस 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो मैं ये 100 नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज में ले रहा हूँ, तो 50% इज द आंसर। 50% के तकरीबन आएगा। और इसको मैं थोड़ा सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, राइट। वैसे ही अभी आप इसका परसेंट निकालोगे, 0 अपॉन एनीथिंग इज नथिंग, 0% ही आने वाला है। 1,20,000 अपॉन 40, तो आपको मिलेगा समथिंग अराउंड 300%, राइट। परसेंटेज में बहुत बड़ा जंप है। और इसमें अगर आपको डेसिमल रखने हैं तो डेसिमल भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 2 डेसिमल तक रख देता हूँ, पूरे को 2 डेसिमल तक डाल देते हैं।
परसेंटेज को 2 डेसिमल तक जाने देते हैं, राइट. If you look in here, it will come to something around 66.67. अगर मैं इसका टोटल करूंगा ना तो मेरा कुछ टोटल बहुत वियर्ड आएगा, 416.67, पर इसका टोटल नहीं होता है, हमको इससे ही लेना है, राइट. ऑलवेज यू टू लुक हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, राइट. सो यहाँ पे एग्जैक्टली बैठेगा 52% बेसिकली, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन किया वो ऐसे किया है, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकता, ये दिस इज रॉन्ग. क्लियर हो रहा है सबको? सेम चीज आपको फाइंड करनी है लायबिलिटीज में, राइट. सेम तरह से और जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड किए, वैसे यहाँ पे भी हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, राइट. डिपेंड्स करता है कि क्या वैल्यूज थी और क्या वैल्यूज आपको मिल रही है, और इसका भी टोटल 52% ही बैठेगा. समझ में आ रहा है? अभी इससे भी ऊपर इम्पोर्टेंट है उसका इंटरफेरेंस. अभी इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है. इन्फ्रेंसेस का मतलब ये होता है कि आपने ये कर तो दिया, राइट, ये बना तो दिया, पर समझे क्या इसमें से आप, ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हमने बना दिया, हमको ये समझ में आता है कि शेयर कैपिटल लास्ट ईयर कितनी थी, 2 लाख, ये साल कितनी हुई, 3 लाख. उसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इसमें से एक इंटरफेरेंस हमको ये निकलता है कि शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, राइट. यानी हमने पैसे ज्यादा जुटाए हैं मार्केट से, 50% ज्यादा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. और अगर लॉन्ग टर्म बोर्डिंग देखे तो वो भी हमने 300% ज्यादा लिए हैं. यानी ये दोनों चीज, ये ओनर्स फंड और ये बाहर का पैसा 300%, वो हमने ज्यादा पैसा लिया है कहीं ना कहीं से. समझ में आ रहा है ये? उसके बाद ट्रेड पेएबल अगर आप देखोगे तो ट्रेड पेएबल भी बढ़ा है, पर ये ट्रेड पेएबल बढ़ने का कोई अलोन कोई रीजन नहीं होता. तो इसको हम साइड पे रखते हैं 2 मिनट के लिए. हम ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर पैसा जुटाया है कहीं ना कहीं से उसने, तो पैसा यूज भी किया होगा. इसको मैं साइड पे रखता हूँ 66 से, राइट. तो यूज कहाँ किया है, फिक्स एसेट में यूज किया है, हाँ दिख ही रहा है फिक्स एसेट में, राइट. तो पैसा बढ़ा कहाँ पे है, अगर आप देखने जाओगे तो पैसा बढ़ा है फिक्स एसेट में, उसका यूटिलाइज हुआ है, और कैश भी बढ़ा है. तो जो पैसा जुटाया है वो यूज यहीं पे हुआ है, बराबर है. ये ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल में जो बढ़ोतरी हुई है वो एक्चुअली में देखने जाए तो सामने नेग्लिजिबल है, क्योंकि जितना लेने का बढ़ा है उतना देने का भी बढ़ा है, राइट. तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. जो फर्क क्या पड़ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फर्क पड़ रहा है और फिक्स एसेट में फर्क पड़ रहा है. समझ में आ रहा है? तो अगर ये पैसे आप जुटाने के बाद अगर आपने उसका यूटिलाइज किया है कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यूटिलाइज किया है, तो इट्स अ गुड साइन, वो साइन गुड है. अगर आपको ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं दिखता है, राइट, पैसे का, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो साइन गलत साइन हो जाएगी. समझ में आ रहा है ये? यस और नो? Yes, sir. सो लेट मी शेयर उन्होंने कैसे इंटरप्रिटेशन लिखा है. देखो उन्होंने भी ऐसे ही निकाला है और उसका इन्फरेंसेस उसने ड्रॉ किया है. वो क्या बताते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोज देयर इज एन इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी हुई है बाय 50%, 1 लाख से, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़े हैं 300% से, जो हमने भी बताया. फिक्स एसेट भी बढ़ा है, राइट, तकरीबन 50% से ज्यादा से बढ़ा है फिक्स एसेट्स. This fact shows that the company has utilized a major portion of the funds raised to the issue of shares in acquiring fixed asset. Fixed asset को acquire करने में पैसे यूज किया है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिक्स एसेट कितना बड़ा है, तो इससे पैसा जुटाया कितना था, टोटल 2,20,000 जुटाया था, और ये 2,20,000 जो जुटाया था उसमें से 2 लाख तो उसने फिक्स एसेट में ही डाल दिया है, राइट.
ये एब्सोल्यूट चेंज से समझ में आता है, इसमें परसेंटेज चेंज से समझ में नहीं आता, पर हमको ये समझ में आ जाता है एब्सोल्यूट चेंज से कि इतना पैसा उन्होंने कहाँ डाला है, फिक्स एसेट में, तो अच्छी बात है, राइट। यहाँ पे लिखा है लास्ट में, यूटिलाइजिंग द रेज टू द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शेयर कैपिटल फॉर एक्वायरिंग द इनकम असेट्स इज अ साउंड गुड पॉलिसी, राइट, वो अच्छी बात है। क्लियर है ये एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है, राइट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, पर ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि एग्जाम में तो भले नहीं आएगा, पर लाइफ में प्रैक्टिकली अगर जब आप देखोगे कोई भी बैलेंस शीट को कल उठ के, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम लगेगी, क्योंकि इसका एग्जैक्टली मेन पर्पस तो यही है कि आप उसको इन्फर करो, यानी उसका मीनिंगफुल कुछ मतलब निकालो। अदरवाइज ये पूरे एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है, ये निकालना तो बहुत इजी है, ये तो आपको भी आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा। चलिए वैसे आगे जाते हैं हम। यहाँ पे लेक्स में दिए गए हैं और सेम तरह के है ना, इसमें एक और चीज दी है, राइट, इसमें क्या दिया है, और एक चीज नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, राइट। तो उन्होंने सेम तरह से किया है, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पे अमाउंट लैक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने जो अमाउंट था वही फिगर्स को लिया है और सेम तरह से फाइंड किया है, राइट, दैट्स इट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, पर दैट डजंट नीड टू शो। एक्चुअली इसका मतलब कब होता है पता है, नोट टू अकाउंट्स का इसका मतलब तब होता है व्हेन यू आर इन्फर, आप कुछ इन्फर करने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब बहुत होता है। तो यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस हो ही नहीं रहा है, तो ये नोट्स अकाउंट का ऐसे कोई मतलब है नहीं। पर यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर कैश यानी बैंक में पैसा था 27 लाख, राइट, लास्ट ईयर था 30 लाख, सॉरी, और ये साल हो गया 27 लाख, 3 लाख कम हो गए बैंक में से, और गए कहाँ पे वो, तो बोलते कि 2019 में 15 लाख थे और ये बढ़ के कितने हो गए, 18 लाख। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक में से कम हुए हैं और कैश में बढ़ गए, यानी ऑन हैंड आ गए, यानी हमने विड्रॉ किए हैं पैसे, राइट। यानी ऐसा भी बोल सकता हूँ कि लोन कम हुई है एक तरह से और दूसरी लोन बढ़ी है। अल्टीमेटली लोन का टोटल बुक वैल्यू तो उतना का उतना ही रहा है, उसमें कोई ज्यादा अंतर आया नहीं है, राइट। तो उन्होंने भी देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाने के बाद उसके अंदर उन्होंने दिखाया है 2 पार्ट, देख सकते हो आप, ये दिख रहा है आपको। Yes, sir. तो ऐसे कभी भी नोट्स टू अकाउंट्स आए तो अगर आपको लगे कि उसके अंदर अगर मुझे बताना है तो आप बता सकते हो उसमें भी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। द रेस्ट इज ऑल सिंपल। अगर किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना है बेटा, तो पूछ सकते हो आप मुझे अभी इसमें से, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फॉर। यस, एनीवन हैज अ डाउट? No, sir. नो डाउट, फाइन। सो शैल वी मूव टुवर्ड्स द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सेम चीज आपको करनी है, राइट, सेम तरह का फॉर्मेट है, बस यहाँ पे भी वही लाइन आइटम्स आपको रिमाइंडेड रखनी है जो पहले आप याद रखते थे। इसमें उसके पर्पस दिखाए गए, ऑब्जेक्टिव्स दिखाए गए, उसका पर्पस ऑलमोस्ट सेम जैसा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी वो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे भी हम इंक्रीज डिक्रीज दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेंड दिख रहा है आपको, और परसेंटेज चेंज भी आप फाइंड कर रहे हो। और फॉर्मेट देखोगे तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट दिखेगा कि पहले प्रीवियस ईयर का फिगर, बाद में करंट ईयर, बाद में एब्सोल्यूट चेंज और बाद में परसेंटेज चेंज। जस्ट दैट कि इसका जो लाइन आइटम्स है वो उसकी लाइन आइटम्स के हिसाब से जाएगा, राइट। सो यहाँ पे भी सिंपल है। सो यहाँ पे एक अपन, हाँ, इसके सम ज्यादा थोड़े बहुत पेचीदा आते हैं, एग्जैक्ट सीधा सीधा सम नहीं आता। जैसे इलेक्शन 5 को देखो, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सम्स में। जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया है, राइट, 20 में दिया था 15 लाख और 19 में दिया था 10 लाख। एक्सपेंसेस दिए हैं और अदर इनकम दिए, बस 3 चीज आपको दी है और कुछ नहीं। तो इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल बनेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, राइट, पहले लिखा 19 पहले आएगा, यानी प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में, राइट। सो 1 लाख, सॉरी 10 लाख और 15 लाख, और उस हिसाब से उन्होंने निकाल दिया है।
अदर इनकम उसके बाद आएगा। अगर कोई आइटम नहीं है यहाँ पे तो आपको उसको लिखनी ही नहीं है, छोड़ दो। सीधा आएगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ आफ्टर टैक्स की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बताया नहीं क्या है। कुछ सम आएंगे जिसमें उन्होंने टैक्स सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। जिसके इलेक्शन 6 देखोगे तो वो भी सिंपल है, इसमें दो तरह के एक्सपेंस दिखाए गए हैं। तो अगर आप सम देखोगे तो एक्सपेंसेस में दो पार्ट दे देना है, जितना दिया है उतना ही आपको लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम बताता हूँ आपको, ये तो सब सिंपल है। नॉर्मल सम आपको जो एग्जाम पूछा जा सकता है वो इलस्ट्रेशन 8 की तरह पूछा जा सकता है। इलस्ट्रेशन 8 को जरा ध्यान से देखो, राइट। अभी ये सम के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको दिए हैं, और वो क्या है, पहले आपको नेट सेल्स दे दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। उसके बाद दिया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज। अभी आपको पता है कि आपकी लाइन आइटम में पहला ही आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो आपको लिखना है। चेंज इन इन्वेंट्रीज भी लिखना है, और उसके बाद क्या लिखा है पता है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कंफ्यूज करता है ज्यादातर, बाकी सब तो आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस इज अ परसेंटेज ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, बिकॉज अनटिल अनलेस आपको पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा, आप कैसे निकालोगे। और उसके बाद उसका क्या निकालना है, उसका 8% आपको निकालना है। तो अदर एक्सपेंसेस 8% है 2020 में COGS के, और 2019 में कितने थे, 10% थे। तो COGS की फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यस, एनीवन? Sir, यस opening हर्षद? stock plus purchase minus closing. यस ट्रू, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और आपको ये पता है ये चेंज इन इन्वेंटरीज क्या होता है? व्हाट इज चेंज इन इन्वेंटरीज? हमने पढ़ा था चेंज इन इन्वेंटरीज क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर मैं इसके ऊपर परचेज को ऐड कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस और दिस अगर दोनों को मिला दूं मैं, तो मैं ये हो जाएगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. या फिर मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे लेके एक बार वापस दिखाऊं आपको अच्छे से, आप बोलो वैसे करूं? व्हाइट बोर्ड पे ले लूं एक बार? हेलो? Yes, sir. ओके, व्हाइट बोर्ड पे ले लेता हूँ, इसे थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके। नॉर्मली व्हाट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, होता क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट। और ये पूरा COGS किसका है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा COGS एक ही चीज का है, स्टॉक इन ट्रेड का। देखो यहाँ पे भी स्टॉक इन ट्रेड ही है, दोनों स्टॉक इन ट्रेड का ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको स्टॉक इन ट्रेड का ही दिखाना है। तो ओपनिंग क्या है, आपको पता है कि स्टॉक इन ट्रेड यानी आपको दिया क्या है, चेंज इन इन्वेंटरीज दिया है। मैं बोल सकता हूँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता क्या है, ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग और कुछ नहीं होता, पर वो क्या होता है, चेंज इन इन्वेंटरीज ही होता है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, चेंज इन इन्वेंटरीज प्लस परचेस। कैसा हो नो? मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ। यस, तो क्या होगा COGS मेरा? चेंज इन इन्वेंटरीज कितना है, 2020 की बात करूँ तो 50,000 प्लस 4,50,000, राइट।
that is equal to 5 lakh. That is a COGS. This is of 2020. वैसे 2019 का मैं निकालूं तो दोनों को ऐड करना है और कुछ तो करना नहीं मुझे. समझ में आ रहा है? वो कितना होगा? 3 लाख. समझ में आ रहा है ये सबको? Yes, sir. ना उसका 8% निकालो. जिसका 8% कितना होता है? उसका 1% कितना होता है? 5,000. 8% कितना होगा? 40,000. और इसका कितना निकालना है हमको? 10%. इसका 10% कितना होगा? 30,000. दिस इज हाउ यू नीड टू डू. तो जब अदर एक्सपेंसेस आएंगे वो कितने आएंगे? इसके अलग आएंगे और इसके भी अलग आएंगे. इसका टोटल आएगा 40,000 और उसका आएगा 30,000. कोई डाउट? समझ में आ रहा है ये? No, sir. ओके. सो Yes, sir. ओके. तो उसके बाद जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट के आने के बाद वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा. राइट. तो अगर मैं ये सम अगर मैं करूँ तो मैं ऐसे कुछ लिख पाऊंगा. यहाँ पे मैं लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. पहले लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट पे. राइट. उसके बाद सब एक्सपेंसेस लिखा जाएगा. एक्सपेंसेस अंदर काफी एक्सपेंसेस है. कौन से हैं? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज और अदर एक्सपेंसेस. तो उसमें 3 कैटेगरी आएगी, 1, 2 एंड 3. राइट. जस्ट अ मिनट. परचेजेस, क्या था? चेंज इन इन्वेंटरीज, एंड द थर्ड वन इज अदर एक्सपेंसेस. राइट. ये सभी फिगर्स यहाँ पे ऐड हो गए. उसके बाद क्या आएगा? टोटल एक्सपेंस आएगा. इसको हम बोल सकते हैं मे बी ये ए हो सकेगा, ये हो जाएगा बी, और इसको ए माइनस बी करेंगे हम तो आपको क्या मिलेगा? पीबीटी मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. राइट. अभी जो भी आएगा ना, ये यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा ना उस पर टैक्स जाएगा. और टैक्स का रेट कौन सा है? टैक्स का रेट जो दिया गया है वो है, दोनों साथ 30% ही है टैक्स का रेट. राइट. तो उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे. राइट. लेट्स से उसको सी बोल देते हैं. राइट. तो हमको क्या मिल जाएगा? उसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ए माइनस बी माइनस सी, ये ऐसा कुछ भी. राइट. और दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड. और आपको ये एक साल के लिए फाइंड नहीं करना है, दोनों साल के लिए फाइंड करना है. सो डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसा सम है आपको दोनों साल के लिए ऐसा फाइंड करना पड़ेगा. राइट. और उसके बाद आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट चेंज कितना है और उसमें परसेंटेज चेंज कितना है. राइट. तो ये दोनों साल का आ गया पहले. उसके बाद आपका आएगा एब्सोल्यूट चेंज, पता है ना, और उसके बाद आएगा आपका परसेंटेज चेंज. समझ में आ रहा है आस्था, आयुषी? Yes, sir. Yes, तो, sir. तो अगर मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊं, मैं अभी सम नहीं कर रहा हूँ पर शॉर्ट में आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. इट इज समथिंग लाइक दिस. जैसे मैंने निकाला था 2020 का कितना आया था हमारा अदर एक्सपेंसेस 40,000 और 30 का, और उन्होंने ये वर्किंग किया है, ये निकालने का वर्किंग यहाँ पे इन्होंने किया है. 40,000 कैसे आया और ये 30,000 कैसे आया? 10% का. राइट. जैसे मैंने आपको बताया. उसके बाद उन्होंने क्या निकाला है? टोटल एक्सपेंस निकाला है. राइट. दोनों केस में टोटल एक्सपेंस निकालने के बाद दैट यू टू माइनस 1 माइनस 2 करो या मैंने जैसे ए माइनस बी बोला वॉट एवर, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. पर यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा. क्यों पता है? क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है. अगर लॉस हुआ तो टैक्स नहीं लगेगा. याद रखना, टैक्स इनकम पे ही लगता है, लॉस पे नहीं लगता. प्रॉफिट हुआ तो ही टैक्स लगेगा. तो अगर टैक्स नहीं लगेगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम ही रहेगा आपका. क्लियर है? और ये हर एक चीज आपकी हॉरिजॉन्टली रो वाइज टैली होगी, ऐसे कभी टैली नहीं होगी. ऑलवेज हॉरिजॉन्टली टैली होगी, वर्टिकली कभी टैली नहीं होगी.
क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. एनी डाउट इन हियर? देखो ऐसा ही है इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 में क्या दिया है आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। यहाँ पे मैं वर्बली करता हूँ आपके साथ थोड़ा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख दिया है। अदर इनकम 15% दिया है। 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, इसका 15% निकालो कितना आता है। और ये 25% है इसका, तो 24 लाख का 10% कितना? 2,40,000। उसका 5% कितना? 1,20,000। 2,40,000 प्लस 1,50,000 कितना होता है? और 1,20,000 कितना होता है? 3,60,000। इसका 15 तक आएगा, 3,60,000 आएगा। ये 18 लाख का 25% कितना होता है? 18 लाख का आधा 9 लाख, उसका आधा 4.5 लाख। अगर 100% दे दूं तो 25% 4.5 लाख होगा, बराबर। अभी एक्सपेंसेस क्या दिया है? एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज, यानी एक्सपेंसेस है, ये तो अदर इनकम आ गया। एक्सपेंसेस कितना आएगा? एक्सपेंसेस आएगा 60%। तो 24 लाख का 60% कितना होता है? तो अगर आपको सिंपल से करना है तो 24 लाख का पहले आधा निकाल दो, 12 लाख, और 10% और दे दो। 12 लाख में 10% 2,40,000 और दैट इज 14,40,000। नहीं, कितना था? 12 लाख, हाँ 14,40,000। एक जीरो और इसका 50% है तो 9 लाख, राइट। देख लेते हैं आंसर ऐसा ही आता है कुछ। यस एग्जैक्टली वही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। ये 17 का, जैसे मैंने बोला, ये 3,60,000 आया, और ये कितना आया? 14,40,000। वैसे यहाँ पे आया 4,50,000 और 9 लाख। उसके बाद आपको मिलेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करोगे, टैक्स यहाँ पे दिया है 40% फ्लैट रेट पे, तो 40% इसका 40% आप माइनस करना है इसका, तो आपको टैक्स मिल जाएगा। और टैक्स माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी मिलेगा। समझ में आ रहा है? पहले ये फाइंड कर दोगे तो ये फाइंड करना तो इजी है, ये दोनों फाइंड करना तो बाद में इजी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. ओके ये सब कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कैलकुलेशन कितना स्पीड में जाता है, राइट। यू वांट मी टू डू एनी सम इन हियर? आप चाहते हो मैं कोई एक सम करूं यहाँ पे? टेल मी। यहाँ पे दिया है एक्सपेंसेस ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का परसेंटेज, अब ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैसे निकालना है, उसका वर्किंग नोट यहाँ पे दिया है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी आपको परसेंटेज पे निकालना है, ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जितना भी आएगा उसका आपको निकालना है 60%, राइट। एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने वर्किंग नोट दिया है यहाँ पे 4th में। तो हाउ मच द ऑपरेटिंग इज, तो एक्चुअली आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, यानी कि इसका 20% और 50% बेसिकली। तो अदर इनकम होगा उसका 20%, दैट इज 4 लाख, और वो होगा 50%, दैट इज 10 लाख। सिंपल ऐसे आप करोगे तो आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके एक काम करना, एक घर पे आपको ट्राई करना, ये सब कौन सा है, ये इलस्ट्रेशन 11 इजी है। आप चाहते हो कोई एक सम मैं करूँ यहाँ पे? थोड़ा टाइम है हमारे पास। यस बेटा, ये आप करोगे? Sir, first we will try. ओके यू वांट टू ट्राई, फाइन। सो मैं आज अपने 3 सम किए, अगर नहीं किए हो तो अगेन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कर लेना आराम से, इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। अगर 3 सम किए तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर 3 सम किए तो आज आप जाओगे 4th 5th से 6 सम पे, और 3 सम करना, तो 6 सम तक खत्म कर देना। इसमें थोड़ा है ना वर्किंग, यानी क्या बोल रहे, टीडियसनेस ज्यादा है, आपको काम करना पड़ेगा बैठ के, लिए सब लिखना तो पड़ेगा। एक बार लिखोगे तो ही ये सम कंप्लीट होगा।
बाकी कैलकुलेशन तो इजी है बाद में। क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए, कोई डाउट कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। एनीथिंग? हर्षिल, आस्था, दृष्टि, आयुषी? No, sir. Okay, don't want to ask. Fine, that's it. If you have any queries, anything like that, you let me know. और आपको अभी सब वीडियोस दिख रहे हैं बराबर अच्छे से वापस? Yes, sir. Okay, fine. That's it then. Thank you so much. Have a great day. Goodbye. कल मिलते हैं वापस.